ये आकाशवाणी है। अब हम आपको तमिलनाडु के रामेश्वरम लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंतिम संस्कार का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं जैनेन्द्र सिंह हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। This is All India Radio. We now take you over to Rameshwaram, Tamil Nadu, for the live commentary of the last rites of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Our commentators are Jainendra Singh in Hindi and Kaushik Roy in English. Over to Rameshwaram. नमस्कार। श्रोताओं, वर्तमान भारत के महान विभूति पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अब हमारे बीच नहीं है। इस सच को ना चाहते हुए स्वीकार तो करना ही है, यही जीवन की रीत है। रामेश्वरम वासी भी इसी मानसिक और भावनात्मक उथल पुथल के बीच से गुजर रहे हैं। डॉक्टर कलाम के जाने का दुख देश को है, दुनिया को है, लेकिन रामेश्वरम की बात थोड़ा हटकर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ की संतान थे, यहाँ के धरती पुत्र थे, सन ऑफ द सॉइल थे। रामेश्वरम पूरी रात जागता रहा है। लाखों की संख्या में रामेश्वरम वासी या बाहर से ही लोगों ने कल यहाँ डॉक्टर कलाम के अंतिम दर्शन के बाद रामेश्वरम की गलियों सड़कों पर जागते हुए रात बिताई है। और आज अब से कुछ देर बाद डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर यहाँ रामेश्वरम शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम क्षेत्र में उस स्थान पर लाया जाएगा जो मदुरई रामेश्वरम राजमार्ग पर स्थित है। और यहाँ एक खाली मैदान में जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये जगह है पेकरम्ब, और इसी जगह पर जो अलग अलग सैनिक सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इस अवसर पर भारत सरकार के कई मंत्रीगण, जिसमें श्री मनोहर पारिकर, श्री M वेंकैया नायडू, श्री शाहनवाज हुसैन, पोन राधाकृष्णन, तमिलनाडु मंत्रिमंडल के सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और भारी संख्या में यहाँ पर वे व्यक्ति उपस्थित हैं जो आतुरता के साथ इस क्षण का साक्षी बनना चाहते हैं, जो आज वे अपने उस प्रेरक व्यक्तित्व को विदाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसने समाज के हर वर्ग को, हम हर उम्र के व्यक्ति को गहरे तक छुआ है, प्रेरित किया है। एक वैज्ञानिक के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, धर्ममर्मज्ञ, संगीतज्ञ और प्रभावशाली वक्ता के रूप में जीवन के आखिरी पल तक उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपनी हर सांस को लगाया है, प्रेरित किया है। कौशिक। Absolutely, Jainendra. This is really a poignant moment when the entire town of Rameshwaram has assembled here at this place called Pekaramba, where the last rites of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, will commence. And we see a multitude of central and state leaders. We also see some members of the diplomatic corps who are posted in India, who have all come to pay their respects to this great son of India. He can be described as an educator, a scientist, better known as a missile man, of course President of India, the people's president, but above all that, we can also say that he has been the perfect combination of science and philosophy. Since times immemorial, Indian philosophy, Indian culture and Indian tradition have really carved a niche for itself, and Dr. Kalam was the embodiment of it. As he was profound in his scientific knowledge, so was he deep-rooted in Indian philosophy. And Jainendra, as you rightly pointed out, thousands of people sitting here at Pekaramba waiting for the last rites to commence. Each one of them have a lump in their throat, and they are really going to miss this wonderful, wonderful human being who also served as the first citizen of the country, that is the President of India. As we were coming down to Rameshwaram from Madurai, at every nook and corner we could see huge portraits of the former president placed at street corners, on the main roads, and people paying their floral tributes to them. The mood is so somber here. We can hear strands of very sad music, and one by one we see important dignitaries and other important officials who are going to take part in these last rites are coming here
and we see that there is so much attention and keen detail has been taken by the armed forces that a befitting funeral is given to the former president. यहाँ पेकरम्ब के इस परिसर में, इस प्रांगण में हमारी दाहिनी तरफ यानी उत्तर की दिशा में सेना की संयुक्त टुकड़ी खड़ी है। सेना के तीनों अंगों की टुकड़ी, जिसमें 17 जवान शामिल हैं। ये सेनाओं की संयुक्त टुकड़ी यहाँ जब पार्थिव शरीर उनका लाया जाएगा, जिस राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, उस अवसर पर वे सलामी शस्त्र, शोक शस्त्र और बिगुल वादन के माध्यम से शोक धुन बजाएंगे। उसके पश्चात 2 मिनट का मौन रखा जाएगा और मौन की समाप्ति पर राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी एक बार पुनः। यहाँ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी उपस्थित है। एक दीर्घा विशेष तौर पर उनके लिए है और साथ ही एक दीर्घा ऐसी है जहां डॉक्टर कलाम के परिवार के सदस्यों को वहां बैठने की व्यवस्था की गई है। नीरज सूचना कल मदुरई से, बल्कि दिल्ली से कहना चाहिए, दिल्ली से मदुरई होते हुए डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर यहाँ रामेश्वरम लेकर आया गया। मदुरई में जब भारतीय वायुसेना के विमान से उन्हें उतारा गया और वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया गया, वहां स्थानांतरित किया गया। उस अवसर पर भी बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने वहां उन्हें श्रद्धांजलि तो दी ही, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर भी चार दीवारी के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, अपनी आस्था को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने के लिए डॉक्टर कलाम के प्रति, अपने पूर्व राष्ट्रपति, अपने पूर्व प्रेरक व्यक्तित्व के प्रति, जिन्होंने इस देश के हर व्यक्ति को बहुत गहरे तक छुआ है। यहाँ बहुत विशाल संख्या में लोगों की भी उपस्थिति है, लेकिन ये जो खास परिसर जिसे घेर कर यह स्थान बनाया गया है, जहाँ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, सुपुर्द खाक किया जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को। इस समय उनके बड़े भाई 96 वर्ष की उनकी उम्र है और वे भी परिवार में जो धार्मिक कृत्य इस अवसर पर होते हैं उन्हें संपन्न कराने के बाद वे अब यहाँ पर अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पधार रहे हैं और यहाँ वे जो दीर्घा बनाई गई है परिवार के सदस्यों के लिए, वहाँ स्थान लेंगे। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज सुबह से ही जो पैतृक निवास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का रहा, वहाँ सुबह से ही जो धार्मिक रीति होती है इस समय इस अवसर पर उन्हें पूरा किया गया। उसके बाद वहाँ पास में ही स्थित मस्जिद में उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया गया और वहाँ जो अंतिम नमाज की अदा की जाती है, उस अंतिम नमाज को अदा करने के बाद वहाँ लेकर इस स्थान के लिए वहाँ से प्रस्थान होने वाला है। And we see the arrival of the Chief Minister of Kerala, Shri Oomen Chandy, who has come to pay his last respects to the departed former President of India. And as you rightly pointed out, Janendra, the elder brother of Dr. Kalam, who has come here as part of the family to pay their last respects to the departed soul, as well as the rites that are connected with this ceremony, the religious rites, they are here to do that. And the people here are waiting since early morning to have a final glance at the last rites of the former President of India. डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर को जब कल यहाँ लेकर आया गया, उसके बाद उसे जनता के दर्शनों के लिए रखा गया था। रामेश्वरम में जो बस स्टेशन है उसके ठीक सामने एक खाली मैदान, वहां पर उसे रखा गया था और लगातार लोगों का तांता वहां लगा रहा। लंबी लंबी लाइनों से होकर लोग वहां अंतिम दर्शन के लिए आते रहे। तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित थे और हजारों की संख्या में, बल्कि लाखों कह सकते हैं, क्योंकि रामेश्वरम शहर में पूरी रात जो आना जाना लोगों का रहा है, लोगों की गतिविधियां रही हैं, बात नहीं करते, उदास चेहरे हैं, आंखों में कुछ नमी भी नजर आती है, लेकिन फिर भी यहाँ इस अवसर का साक्षी बनने की उनकी आकांक्षा है और इसलिए वे अपने प्रिय नेता को अपनी अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं रामेश्वरम में। और इस अवसर पर भी दूर दूर तक, जहाँ पेड़ों की छाव में, दीवारों पर, पेड़ों के ऊपर, या जहां से जिसकी नजर जाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी यहाँ से रामेश्वरम मदुरई का बिल्कुल साथ से गुजरता है और उस राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ही बिल्कुल साथ लगते ये प्रांगण है जहां पर अंतिम संस्कार सुपुर्द खाक किया जाएगा डॉक्टर कलाम को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह जो धार्मिक रीतियां होती हैं अंतिम इस विदाई में परिवार में, वो सब संपन्न हुए और उसके बाद मस्जिद में भी जो अंतिम नमाज पढ़ी गई। We now see the arrival of the dignitaries one after the other, and Janendra, Dr. APJ Abdul Kalam, the former President of India, was also the Supreme Commander of the Indian Armed Forces from 2002, 25th July to the 25th of July 2007. So this is but a perfect setting
for a long and wonderful innings of the former president that he should be honored with national last rites, and that is what we are going to witness in a few moments from now. With all the national honors, we see 14 men each of the Indian Navy, Army and Air Force who are going to be taking part in today's national salute and other related events also. And we now see the arrival of so many dignitaries here at Pekaramba. They have been received by the Union Urban Development Minister Shri M. Venkaiah Naidu and are being directed to the area where the dignitaries will be sitting, and people here are expectantly awaiting the arrival of the cortege of the former president from his residence. And as we have been bringing you moments and snippets of the public sentiment here, as Janendra very rightly said, that people are teary-eyed and they all have lumps in their throats. डॉक्टर कलाम से एक बार जब एक बच्चे ने पूछा था, क्योंकि बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था, युवाओं के बीच में रहना वो बहुत पसंद करते थे, तो जब एक बालक ने उनसे पूछा कि आपकी सबसे बड़ी अभिलाषा है, सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो उनका जवाब था कि मैं देश के करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। और यही काम डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन भर में किया, आखिरी सांस तक किया। जितने भी उनकी पुस्तकें हैं, जिनके उनके प्रवचन हैं, भाषण हैं, संबोधन हैं, उन सबके माध्यम से, और सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन में जो स्वयं उन्होंने अपनाया उसके माध्यम से बहुत प्रेरणा दी है लोगों को। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन टू द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी, और इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, ये उनकी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके माध्यम से उनकी सोच, उनके दर्शन और उनके व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं पर गहरे तौर पर उसकी समझ हमारी बनती है। माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखा, जब हम नाकामयाब होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी सारी क्षमताएं हैं और वे पहले से ही मौजूद होती हैं, बस हमें उनकी तलाश करनी होती है और जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। और श्रोताओं, आपको याद होगा डॉक्टर कलाम जब ये कहते थे कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये वाक्य और ये संदेश हर युवा के दिल में बसा हुआ है और इतना सशक्त ढंग से उन्होंने अपनी बात पर बहुत सहज ढंग से भी कही कि हर एक के दिल में वो बातें बसती हैं। श्री चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे भी यहाँ इस अवसर पर पहुंच चुके हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल के सदस्य तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ सदस्य भी यहाँ पर बारी बारी से आ रहे हैं। कई लोग पहुंच चुके हैं और अभी भी आने का सिलसिला जो है यहाँ लगातार जारी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके चरित्र का मूल स्वर ही था भारत, यानी ये देश, और उनका खासतौर पर यह विश्वास था कि भारत के पास कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जरूर है जिससे पूरी विश्व मानवता का भला हो सकता है। उस आध्यात्मिक शक्ति की तलाश जीवन भर उन्होंने की, उसके गहराई तक पहुंचने की, उसको समझने की, उसको छूने की कोशिश की और उसको दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश की। क्योंकि चाहे वो कोई भी परिस्थिति रही हो, जब वे राष्ट्रपति थे तब भी और राष्ट्रपति के बाद भी, उनका सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति आस्था, सम्मान कभी भी किसी के मन में भी कहीं से भी कम नहीं हुआ। युवाओं के बीच उन्होंने और ज्यादा समय दिया जब राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद, और इस तरह से जो परिस्थितियां रही हैं वो हमेशा प्रेरित करती रही हैं। यहाँ साफ साफ हम स्क्रीन के माध्यम से, जो दूरदर्शन के कैमरे लगे हुए हैं उसके माध्यम से हम साफ तौर पर ये देख पा रहे हैं कि इस परिसर को जिसकी घेराबंदी की गई है सुरक्षा कारणों से विशेष तौर पर, लेकिन उसके बाहर दूर दूर तक लोगों के अपने घरों की छत पर, पेड़ों पर, आगे बनी बिल्डिंग्स के ऊपर या जमीन पर हजारों की संख्या में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, शांति के साथ बैठे हैं, सद्भाव के साथ बैठे हैं और संयम के साथ बैठे हैं, क्योंकि इस अवसर पर यहाँ आना उनके लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। इस अवसर पर यहाँ आकर अपने सबसे प्रिय व्यक्तित्व को, विभूति को अंतिम विदाई देना उनके लिए एक बहुत मार्मिक क्षण है। ऐसा मार्मिक क्षण जो
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जुड़ा है, इस सन ऑफ द सॉइल के साथ जुड़ा है, इस धरती की संतान के साथ जुड़ा है जहां वे पैदा हुए, जहां उन्होंने जीवन के तमाम संघर्षों से आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा शुरू की। 15 अक्टूबर 1931 को यहीं रामेश्वरम में एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था जैनुल आबदीन और माँ की अम्मा जो है उनकी माँ थी मदर। पिता के पास कुछ नावें थी जो किराए पर भी देते थे और एक फेरी भी थी जो रामेश्वरम और धनुषकोटी, जो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है, इसके बीच में वो फेरी चलाते थे, तीर्थयात्रियों को ले जाते थे और ले आते थे। अब्दुल कलाम साहब ने अपनी स्कूली शिक्षा भी यहीं पूरी की थी, लेकिन पिता की और परिवार की मदद के लिए उन्होंने बचपन में अपनी पढ़ाई के साथ साथ कई काम भी किए। अखबार बेचने का, उन्होंने अखबार बांटने का भी काम किया। गणित विषय उनको बहुत पसंद था शुरू से ही और उसे पढ़ने की, उसको सीखने की इच्छा उनके अंदर बहुत बलवती थी। एक प्रसंग में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था अपने एक शिक्षक के बारे में और इससे पता लगता है कि वे शिक्षक के महत्व को किस तरह आंकते थे और खुद एक शिक्षक के रूप में उनकी अपनी भूमिका किस तरह समझते थे। एक दिन उनके शिक्षक उनके क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, बल्कि एरोप्लेन कैसे, हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, और वे बच्चों को अगले दिन समंदर के किनारे तट पर लेकर गए और वहां बहुत सारे पक्षी जो खासतौर पर समंदर के किनारों पर सुबह शाम नजर आते हैं, उन पक्षियों की हरकत को उन्होंने बैठकर बड़े नजदीक से समझाया कि किस तरह से ये पक्षी उड़ते हैं, उसी तरह से एरोप्लेन भी, हवाई जहाज भी उड़ता है। तो ये समझ जो बचपन में शिक्षक के माध्यम से उनके मन में बैठी, एक शिक्षक का क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है, ये जो उन्होंने महसूस किया, वो शिक्षक हमेशा उनके मन में आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक जिंदा रहा। Absolutely, Jainendra, and as you were talking about literally Dr. APJ Abdul Kalam's ideas taking wings, his celebrated book Wings of Fire is of course a bestseller, continuing with his wonderful educational journey. After finishing school from here at Rameshwaram, where he joined the Schwartz School at an early age, then he moved on to the then Madras in 1955 to study aerospace engineering. After graduating from the Madras Institute of Technology, Dr. Kalam joined the Aeronautical Development Establishment of the Defence Research and Development Organization, DRDO, which is one of the organizations which is very dear to his heart. Dr. Kalam was also part of the INCOSPAR committee, directly working under Dr. Vikram Sarabhai, the renowned space scientist. In the 1960s, before rocket science became such an important word in Indian lexicon, he did visit NASA's Langley Research Center in Hampton, Virginia, and the Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, and Wallops Flight Facility. He always said that you have to dream before your dreams come true, and he dreamt big, and he was also the mission director of two of India's most important intercontinental ballistic missiles, that is the Agni and the Prithvi, and these are weapon systems that India is very proud of today. No one can forget his yeoman contribution during the 1998 Pokhran 2 tests on the 11th and 13th of May 1998, and it was after this particular event, Jainendra, that Dr. Abdul Kalam became a household name across the length and breadth of the country, from Kashmir to Kanyakumari and from the Rann of Kutch to Arunachal Pradesh. The Missile Man of India in 4 years' time became the President of India, and when he was filing his nomination for presidency, I remember distinctly that he was almost a consensus candidate. We now see on the television monitors of Doordarshan that the Union Defence Minister Shri Manohar Parrikar and Shri M. Venkaiah Naidu are waiting for the arrival of some dignitaries. We are today very happy that there are lots of dignitaries, including the Governor of Kerala, the Chief Ministers of Kerala and Andhra Pradesh, who have come to watch today's proceedings, are so silently taking part in this very momentous time in India's post-independence history. We have seen so many leaders come and go, but Dr. APJ Abdul Kalam
has occupied a unique place in the hearts of Indians, both the young and the old, and he had a unique connect, as you rightly pointed out, Janendra, with the students of India. कुछ ही देर में यहाँ माननीय प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता, स्थानीय यानी राज्य स्तर के भी और दिल्ली के भी वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। ये सच बात है, उड़ान भरने की ख्वाहिश हमेशा से रही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, और इसी अभिलाषा की वजह से वे पायलट बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने परीक्षा भी दी थी, लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका स्थान था 9वां और सिर्फ 8 लोगों को चुना जाना था उसमें से। ये एक निराशा भरे क्षण थे उनके जीवन के, लेकिन उस निराशा भरे क्षण से निकलकर इस असफलता को उन्होंने जिस तरह से अपने सफलता की जमीन बनाई, उसे अपना आधार बनाया, वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रेरक भी रहा है। इस असफलता ने उनके जीवन को कहीं बहुत गहरे तक छुआ भी था। अपनी इच्छा या यूं कहें कि सपना साकार ना हो पाने का दुख और निराशा दोनों ने उन्हें जकड़ा, लेकिन वो खुद कहते थे असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, और उनकी इस असफलता ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी, ऐसी दिशा जिसने उन्होंने जिसके माध्यम से एक इतिहास रचा, अपने लिए भी, समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए भी। 1960 में कलाम साहब ने DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के तौर पर कार्य करना शुरू किया था, और वहां एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो जुड़े थे। शुरुआती दौर में DRDO में भारतीय सेना के लिए छोटे और हल्के हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में उन्होंने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी, और इसी दौरान उन्हें डॉक्टर विक्रम साराभाई के संपर्क में आने का मौका मिला। कलाम साहब कहा करते थे, अपने करियर के शुरुआती दौर में मुझे 3 महान गुरुओं से सीखने का मौका मिला, डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। इस समय भारतीय सेना के तीनों अंगों की संयुक्त टुकड़ी मार्च पास्ट करते हुए यहाँ इस परिसर में, वो स्थान जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, वहां उसके बिल्कुल साथ लगती जगह पर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। इसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की टुकड़ियां संयुक्त रूप से इसमें राष्ट्रीय सलामी में और राजकीय सम्मान से इस अंतिम विदाई में अपनी उपस्थिति यहां पर दर्ज करेंगी। ये सभी और आसपास उपस्थित हजारों व्यक्तियों की नजरें उस क्षण और उस समय को निहार रही हैं जब अपने सबसे प्रिय और प्रेरक व्यक्तित्व को आज वे अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, आज सुबह पैतृक निवास से डॉक्टर कलाम के पैतृक निवास पर धार्मिक रीति से सारी क्रियाएं संपन्न की गई, और उसके बाद घर के नजदीकी स्थित एक मस्जिद में धार्मिक रीति से जो अंतिम नमाज अदा की जाती है वो की गई, और उसके बाद सैन्य वाहन पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया, और उस पार्थिव शरीर को वहां से पूरे सम्मान के साथ लेकर यहाँ इस स्थल तक आया जा रहा है। पेकरम वो जगह है जहां पर वो कब्र बनाई गई है, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। कब्र के बिल्कुल साथ वो छोटा सा एक चबूतरा है जिस पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, और यहाँ उपस्थित जो भी गणमान्य विभूतियां हैं वो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। यहाँ एक बार पुनः शिलांग से गुवाहाटी और गुवाहाटी से जब दिल्ली उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया गया था, तो दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर स्वयं राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी और साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पहुंचे थे, और वहां उनके अपने निवास पर वो रखा गया जनता के दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को, और उसके बाद कल उसे मदुरई और मदुरई से फिर रामेश्वरम लेकर आया गया। मदुरई से रामेश्वरम के रास्ते में जगह जगह, चाहे वो गांव हो, कस्बे हो या कोई सुनसान किसी 1 या 2 व्यक्ति का घर भी हो, लोगों ने अपने घरों के आगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र लगा रखा, वहां पर अगरबत्ती जलाई हुई, वहां पर पुष्प रखे हुए कि कोई भी व्यक्ति आकर वहां उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकता है। और उनके बहुत ही प्रेरक जो संबोधन, जो भाषण रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स वहां पर प्ले की जाती रही, बजाई जाती रही, और आने जाने वाले व्यक्ति या जो भी वहां उपस्थित होते थे वे उसे सुनते थे। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के वाणी, उनके विचारों ने कितनी गहराई तक हमारे मानस पटल को छुआ है, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला भारतवासी हो। हर एक के दिल में उनके लिए वही श्रद्धा, वही सम्मान और वही स्नेह रहा है, और इसीलिए
कल से लगातार यहाँ पर लाखों की संख्या में निरंतर जिसको जहां संभव हो सका वो अंतिम दर्शन पाने की कोशिश करता रहा और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की कोशिश करता रहा। पेकरम का ये मैदान जिसे खासतौर पर उस स्थल के लिए चुना गया है जहां अंतिम विदाई दी जाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, सुपुर्द खाक किया जाएगा, वो कब्र भी वहां बनाई गई है। और इसी स्थान पर ऐसी जानकारी दी गई कि यहाँ पर एक समाधि स्थल बनेगा और निश्चित रूप से वो समाधि स्थल ऐसा होगा रामेश्वरम के शहर के बिल्कुल बाहर उसके पश्चिमी छोर पर, जहां हर भारतवासी आकर एक बार नतमस्तक होना चाहेगा, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेगा। And Jainendra, we can also see from the place that we are perched up here today that so many thousands of people are walking from the side of Madurai to come here to Pekarambu to pay their last obeisance to the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Since last night we have seen that the small temple town of Rameshwaram has been full of visitors who have come from near and far to pay their last respects to the son, the dear son of this particular place, that is Rameshwaram, that is Dr. APJ Abdul Kalam. He was one of the first politicians, I recall, Jainendra, who took to Facebook and Twitter, and it was such a rage. I mean, here we were a country who did not have so much net connectivity and all about 10 to 15 years back, but we had a president who did big, who thought big, and he was always connected. He was one of the greatest Indians to have achieved the presidency of the country, but his hallmark was his simplicity of his outlook, and also simplicity in his behavior, as has been told by so many people who have spoken to the media, who were close to Dr. Kalam or were connected to him, have always spoken about his simplicity. And Jainendra, one good thing that happened a couple of weeks ago was when our colleagues from All India Radio were producing a feature on India's tryst with space. Dr. Kalam was one of our most eminent talkers. He readily granted us an interview only about 15 days back, and alas, today it is such a big loss that this great son of India is no more. But for times immemorial, his memory will be cherished. His memory will always be looked at with respect. And we now see that the crowd here in Pekarambu has taken gigantic proportions, but still the foot soldiers coming in from Madurai and other places on the Madurai-Rameshwaram highway are not stopping. They are all trying to come here and pay their last respects to this great departed soul. शिलोंग में भारतीय प्रबंध संस्थान में आखिरी अपना वक्तव्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया। शिलोंग जब वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, उनके साथ सृजन पाल सिंह थे, उनके बहुत ही निकट के सहयोगी, उनके लेखन में भी उनका साथ देने वाले। सृजन ने एक बहुत रोचक बात साझा की। जब वे लोग शिलोंग के लिए रास्ते में जा रहे थे, लगभग 6-7 गाड़ियों का उनका काफिला था, और उसमें डॉक्टर कलाम की गाड़ी के आगे जो था एक ऐसी जिप्सी थी जिसमें सुरक्षाकर्मी, जिसमें सैनिक जो है वो 2 सैनिक बैठे थे अगल बगल की सीट पर, और एक सैनिक लगातार बंदूक लेकर, राइफल लेकर खड़ा था, उस गाड़ी के आगे चल रहा था जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके साथ सृजन पाल मौजूद थे। अचानक डॉक्टर कलाम की नजर पड़ी उस सैनिक पर जो खड़ा था, और उन्होंने सृजन से पूछा, कौशिक, कि ये खड़ा क्यों है इतनी देर से, ये तो थक जाएगा इतनी देर खड़े खड़े। तो उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा के लिए है और उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसा करे, लेकिन उनका दिल नहीं माना, और उन्होंने कहा कि वायरलेस पर आप मैसेज दीजिए सिक्योरिटी जो भी हैंडल कर रहा है कि वो उसको बोले कि वो बैठ जाए। उन्होंने इशारे से भी बताने की कोशिश की कि वो बैठ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, और वे आखिर अपने पड़ाव पर पहुंचे, मंजिल पर पहुंचे। तो आज जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अंदर चले गए रूम में, तो उन्होंने सृजन से कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उस सैनिक से। उसे ढूंढा गया, उसे वो लेकर आए, और उन्होंने बहुत प्यार से उससे हाथ मिलाया और बोले, आप थक गए होगे, आपको कुछ खाने के लिए मैं मंगवाता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी देर लगातार खड़े रहना पड़ा। ये
संवेदना और संवेदना की ये गहराई और ये विस्तार बहुत बहुत मुश्किल से कहीं देखने सुनने को मिलता है। और इस समय श्रोताओं हम आपको बताएंगे, ऐसे ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ सैन्य वाहन पर यहाँ पूरे लगभग 5 मिनट का ये रास्ता जो उनके पैतृक निवास से यहाँ तक का है, उस पर सैन्य अधिकारियों के साथ उसे लेकर आया जा रहा है। हमारे सामने बिल्कुल इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जो कि रामेश्वरम और मदुरई के बीच का राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसके साथ ये पेकरुम्ब का मैदान है जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसमें सबसे आगे थल सेना के सैनिक हैं, सबसे अगले वाहन पर, उसके पीछे नौसेना के सैनिक हैं, और तीसरा जो वाहन है उस पर मौजूद हैं वायुसेना के सैनिक और अन्य जो मिले जुले तीनों सेनाओं के सदस्य हैं मिले जुले, वो इस पर शामिल है। और उसके पीछे वो वाहन आ चुका है जिस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर रखा है। We see the cottage which has just now arrived here in Pekaramba, the cottage of the former president of India, been escorted with full military honors and been followed by thousands of residents of Rameshwaram and Pekaramba. They are going to arrive here shortly, and now Janendra, we can see the tricolor draped cottage of the former president of India, Shri APJ Abdul Kalam, and also the vehicle is been pulled by the local police authorities, and we now see that they are entering here into Pekaramba, and the combined inter-services personnel who are arriving as a part of the national salute that will be given to him. And we see the cottage being halted for the moment. It will take a right turn to enter into the Pekaramba area, and we now see the lead vehicle taking this turn towards the right. And as we see the dignitaries here, everyone is getting up from their seats and waiting for the arrival of the cottage. सबसे अगले वाहन पर जिसपे थल सेना के सदस्य सिपाही उसमें थे, वे वहां से उतरकर आगे के लिए चले हैं। उनके पीछे वायुसेना और उसके पीछे नौसेना और फिर वायुसेना के सिपाही भी अपने वाहन से उतरते हुए आगे आगे इस स्थल की तरफ आ रहे हैं जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई दी जाएगी। निश्चित रूप से इस राजमार्ग पर, इस सड़क पर विशाल संख्या में लोग उपस्थित हैं, और इसके अलावा इस पेकरुम्ब मैदान के आसपास का क्षेत्र भी, यहाँ तक कि पेड़ों पर भी चढ़े हुए लोग नजर आते हैं जो बस एक झलक पाना चाहते हैं। इतनी दूर से शायद उस अपने प्रिय चेहरे पर को वो ना देख सकें, लेकिन वो तस्वीर उनके दिलों में है, वो तस्वीर उनके जहन में है, उनके दिमाग में है, और इसीलिए उनको उसको इतने नजदीक से ना देखकर भी उसको महसूस कर सकते हैं। आसपास खड़े सभी, यहाँ तक कि जो सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मी भी हैं, वे भी पुष्प उनके ऊपर अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं उस महान विभूति के, उस पार्थिव शरीर के प्रति जिन्होंने हमेशा हमें प्रेरणा दी है, जिन्होंने इस देश को प्रथम नागरिक के रूप में, मिसाइल मैन के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, दार्शनिक के रूप में, एक भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ के रूप में हमारा मार्गदर्शन किया है। कहा उन्हें मिसाइल मैन जाता है, लेकिन अपनी उस तकनीक को उन्होंने देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए और शांति के लिए हमेशा इस्तेमाल करने की, और साथ ही उससे जो देश को ताकत मिली है, एक संबल मिला है, उसके लिए हम जानते हैं। और एक बार एक बालक ने जब उनसे पूछा था कि पिछले 40 वर्षों में आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज वो कौन सी है जिसने आपको खुशी दी है, तब उन्होंने कहा था कि जब एक हृदय रोगी अपनी धमनियों में KR कोरोनरी स्टेंट धारण करता है। श्रोताओं, इसके निर्माण के पीछे, इसके तैयार होने के पीछे उनका महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी। और जब शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हल्के फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस कैलिपर धारण करते हैं और अपनी कठिनाइयों को उससे कम महसूस करते हैं, तब उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है। ये उनके मन की बात थी। और इस समय तमाम अलग अलग जो पेड़ है, नारियल के और दूसरे वृक्ष हैं, उस पर भी काफी ऊंचाई तक चढ़े हुए लोग नजर आते हैं। यहाँ लोग बहुत इस बात के लिए कुशलता है लोगों में कि इस तरह के वृक्षों पर वे आसानी से चढ़ जाते हैं और वे ऊंचे ऊंचे जगहों पर पेड़ के ऊपर भी चढ़े हुए नजर आते हैं। इस समय पार्थिव शरीर से आगे सबसे पहले जो पहले वाहन पर उनके परिवार के सदस्य थे, वे इस स्थल की तरफ आगे सबसे आगे आते हुए
जहां उनके पीछे और उनके जो रिश्तेदार परिवार के सदस्य वो यहां आकर अपना स्थान, जो एक विशेष दीर्घा बनाई गई है वहां आकर वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और उसके पीछे पीछे पार्थिव शरीर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्हें आज सुपुर्द खाक किया जाएगा पकरुम के इस प्रांगण में, जहां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए श्रद्धा भाव से नतमस्तक होते हुए अपने उस प्रिय व्यक्तित्व के प्रति जिन्होंने उनके जीवन में बहुत कुछ बेहतर दिया है और देने की जिनकी इच्छा थी और अंतिम समय तक वे इसके लिए प्रयासरत रहे। जो स्थल जहां पर जो चबूतरा बनाया गया है जिस पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, वहां एक पात्र में पुष्प रखे हुए हैं। जो यहाँ जो विभूतियां आएंगी वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उस पात्र से पुष्प लेकर। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एक दीर्घा में नजर आ रहे हैं, जबकि जैसा हमने पहले भी बताया था श्रोताओं कि एक दीर्घा विशेष तौर पर उनके परिवार के सदस्यों के लिए और उनके रिश्तेदारों के लिए बनाई गई है, जहां वे अब आकर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। कुछ ही देर में ऐसी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री महोदय भी यहां पहुंचेंगे और इस बीच ये बीच का जो मैदान है रेतीला मैदान है और इसी मैदान में विशेष तौर पर एक स्थान बनाया गया है, एक कब्र बनाई गई है जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। अपनी तरफ से जय घोष, वो नारे जो हमें ऊर्जा देते हैं, प्रेरित करते हैं और जिस ऊर्जा के लिए हमेशा जो हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलती रही है। विशाल संख्या में अपने अपने हाथ उठाकर जिस तरह से भी जो भी अपने भाव व्यक्त कर सकता है वो कर रहा है, पुष्प अर्पित करके और नारे लगाकर या सिर झुकाकर। आंखें नम हो सकती हैं, आवाज ना भी निकले, लेकिन भावनाएं यहाँ चारों तरफ तरंगित हो रही हैं। And we now see the final journey of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, beginning his cottage draped in the national tricolour has been brought here to the Pekaramba burial site, and the first contingent of the Indian Army are in a slow march who have now just entered the Pekaramba complex. They are followed by the Indian Navy sailors who are also taking part in this slow march, and it is with such precision we see everyone here in Pekaramba complex are standing to attention watching this state funeral of the former President of India. The cottage of the President has been followed by thousands of people from the armed forces and also the lay commoners who have come here. You now see the airmen entering the Pekaramba complex, and then we have the massed pipes and drums, and now we see the cottage of the former President of India. Flowers are being showered upon the cottage of the former President of India. A truly poignant moment here today for all of us here who are gathered here at Pekaramba. The soldiers, sailors and airmen are going to remember this day forever. सैनिकों के हाथ में उल्टी झुकी हुई पीछे की तरफ की हुई राइफल्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस धरती पर, जिस धरती पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जन्म लिया था और जहां आज वे अपनी अंतिम यात्रा पूरी करते हुए अनंत में विलीन होंगे, ये सैन्यकर्मी, ये सैनिक, सबसे आगे थल सेना की टुकड़ी और उसके पीछे नौसेना की टुकड़ी, उसमें शामिल जवान उसी तरह से उल्टी राइफल पीछे की तरफ किए हुए आहिस्ता आहिस्ता धीमे कदमों से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तीनों टुकड़ियां एक दूसरे प्रवेश द्वार से जिन्होंने प्रवेश किया है इस पकरुम के प्रांगण में, जबकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर उसे लेकर दूसरे द्वार से, दूसरे प्रवेश द्वार से यहाँ उस स्थल पर लाया जा रहा है जहाँ एक चबूतरा, एक छोटा सा मंच बनाया गया है जिसे सीधे, बहुत ही सीधे और साधारण तरीके से, सादे ढंग से उसे सजाया गया है। राजकीय सम्मान के साथ यह अंतिम विदाई का क्षण है। उन्होंने समूची मानव जाति के लिए एक प्रेरणा बनकर दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर संघर्ष भी किया, प्रयास भी किए
और अपनी आखिरी सांस तक प्रयास किया है। रामेश्वरम की यह पावन धरा इस बात के लिए हमेशा याद की जाती रही है, बहुत सारे कारणों से याद की जाती है। लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर यहाँ पर इसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये इस स्थान के महत्व को और भी बढ़ाएगा, क्योंकि जिस धरती पर उन्होंने जन्म लिया आज यहीं वे अनंत में विलीन होंगे, सुपुर्द खाक होंगे, और उनके पार्थिव शरीर को वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जो है वे उसे सहारा देकर, कंधा देकर उसे लेकर आ रहे हैं। लोग यहाँ हजारों की संख्या में जो आसपास उपस्थित जन समुदाय है भावातिरेक में है, निश्चित रूप से उनके मन में गहन संवेदनाएं हैं, श्रद्धा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति, सन ऑफ द सॉइल, इस धरती पुत्र के प्रति, और इसलिए वे लगातार नारे लगा रहे हैं। कोई उत्तेजना नहीं है, कोई उतावलापन नहीं है, संयम है, धैर्य है, लेकिन भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, और इस तरह से वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अमर रहें, ऐसे नारों के साथ उस व्यक्तित्व को नमन कर रहे हैं जो आज अपनी अंतिम यात्रा पर यहाँ जिनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जो कंधा देकर पार्थिव शरीर को लेकर आ रहे थे, वे बिल्कुल चबूतरे के पास पहुंच चुके हैं जहां उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। बहुत सम्मान के साथ, संयम के साथ, सावधानी के साथ उतारकर उसे उस चबूतरे पर रख रहे हैं सैन्य अधिकारी। और निश्चित रूप से यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और बहुत सारे संचार माध्यमों के प्रतिनिधि मौजूद हैं जो पूरे देश विदेश में यहाँ के पूरे दृश्य को पहुंचा रहे हैं, उसी तरह जिस तरह से हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आप तक यहाँ के पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं, जो भावनाओं के उस गहराई को प्रदर्शित करती है जो हम सब के मन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति थी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर। Now the cottage has been opened. The tricolor bedecked body of the former President of India lies in state here at Pekaramba. The body of the President has been flanked by the armed forces personnel who are paying their salute, the final salute to the former President of India, and after that they get down from the raised flower bedecked platform and take their respective places. People now waiting for the arrival of the Honorable Prime Minister of India to take part in this national funeral of the former president. And we see the chants and hear the chants of the people who assembled here of Dr. APJ Abdul Kalam Amar Rahe. The Army, Navy and Airmen standing to attention, and we are all expectantly waiting to see the arrival of the high dignitaries before the last rites ceremony of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, commences. As you were recalling, Janendra, the unique journey of the President of India from Rameshwaram to the highest office of the land, that is the President of India, and also in his death he has left a void which will be very, very hard to fill. A man of the masses, man for the masses, and he always stood by the masses. He reached out to each and every Indian as someone who was an educator, someone who was a philosopher, someone who was always having words of wisdom. और इस समय हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर पारिकर, वेंकैया नायडू जी, वे सभी आगे बढ़े हैं और वहां वे पंक्तिबद्ध हैं। इस समय श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, भी यहां पर पधार चुके हैं। उनके साथ और भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं और माननीय प्रधानमंत्री इस समय सीधे उस स्थल की तरफ आ रहे हैं जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। सभी अपने अपने स्थान पर इस समय खड़े हो चुके हैं। जो भी दीर्घाएं हैं जहां, उसमें चाहे सैन्य अधिकारी हों या उनके परिवार के सदस्य, वे सभी स्थान पर अपने खड़े हैं।
सुरक्षा की बहुत विस्तृत व्यवस्था, बहुत विस्तृत इंतजाम किए गए हैं और इस हिसाब से सभी, लेकिन एक बहुत भावुक क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री पुष्प चक्र के पास पहुंचते हुए, जहां से सेना के 2 जवान उनके आगे आगे पुष्प चक्र लेकर चलेंगे और सबसे पहले यहां देश का प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उस महान विभूति के प्रति जिन्होंने सदैव इस देश को, इस देश के युवाओं को, इस देश के बालकों को, हर वर्ग को, समाज के हर पहलू को उन्होंने छुआ है और प्रेरणा दी है। इस समय प्रधानमंत्री महोदय अपने हाथों में उन्होंने पुष्प चक्र लिया और उसे चरणों में रखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर के, नमन किया, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और 2 कदम पीछे हटकर वे अपने स्थान पर खड़े हो गए, सावधान, मौन। ये मौन यहाँ के माहौल में है, यहाँ के वातावरण में है, लेकिन ये मौन उस तमाम आवाजों के शोर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो हमारे दिल की अनंत गहराइयों में समाया हुआ है। इस समय सलामी देते हुए तीनों सेनाओं के संयुक्त टुकड़ी बिगुल वादन के साथ भारत के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में रामनाथपुरम के जिले के इस हिस्से में यानी रामेश्वरम में जो एक तीर्थ स्थल है, उसी तीर्थ स्थल में एक ऐसा स्थान, एक ऐसी महान विभूति के साथ जुड़ने जा रहा है जो इस देश के देश प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल बनेगा, जो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इस राष्ट्र के विकास में, इसकी मजबूती में अपना योगदान देंगे। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस देश को, जो उनका विजन था, उनकी सोच थी, इसे वे नॉलेज सुपर पावर बनाना चाहते थे। एक ऐसा शक्तिशाली देश जो ज्ञान के लिए, आध्यात्म के लिए पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सके, पूरी दुनिया के लिए एक नेतृत्व प्रदान कर सके। बिगुल वादन के साथ ही अब 2 मिनट का मौन। Prime Minister paying his last tributes to the former President of India, representing this vibrant democracy of India, flanked by 2 soldiers of the Indian Army. The Prime Minister saluting the departed former President of India. And the air is here numb with sorrow, and he has been given the national salute, the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. We hear the buglers, and this is indeed a very somber and poignant moment for all Indians, and especially for the residents of Rameshwaram, a place which is very close to the heart of the departed former President of India. Prime Minister Narendra Modi now going towards the raised platform with folded hands and paying his homage to the departed President of India, coming back in a circulatory movement, bowing down his head, folding his arms and walking towards the enclosure. We can also see a galaxy of very important persons and dignitaries who are here and who will also pay their respects to the former President of India. The Prime Minister walking back towards the dais, and he is now going to meet the family members of former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. He was bowing down and talking, exchanging a few words with the elder brother of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. We can now see the Governor of Tamil Nadu, Shri Konijeti Rosaiya, who is also coming to pay his respects
at the raised platform. He is followed by the Union Defence Minister Shri Manohar Parrikar, who is followed by the Union Urban Development Minister Shri M. Venkaiah Naidu. Governor of Tamil Nadu Shri Konijeti Rosaiah is paying floral tributes to the former departed President of India, and the governor is now going in a circumambulatory round of the flower-bedecked platform where the cottage of the former president has been placed for people to pay their last respects to the departed former president. Sri Rosaiah is now moving away from the platform, and we see the Union Defence Minister Shri Manohar Parrikar paying his floral tributes to the former Supreme Commander of the Indian Armed Forces. The Prime Minister is still continuing his conversation with the family members of the former President, and in a few minutes from now we shall see the commencement of the religious rites here. Shri M. Venkaiah Naidu, the Urban Development Minister, paying his floral tributes to the former President of India, Shri APJ Abdul Kalam. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर की परिक्रमा पूरी करके एक बार फिर से सिर झुकाया है श्री एम वेंकैया नायडू ने, और इसके अलावा अब पुन राधाकृष्णन जो इस समय अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस बीच अभी भी माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई उनके पास पहुंचे, नतमस्तक हुए, उनका पैर छुआ, और इस समय उन्हीं के बिल्कुल पास बैठे हुए इस बहुत ही भावपूर्ण क्षण में उनके साथ चर्चा करते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, और इस बीच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर पर एक एक करके जो विभिन्न विभूतियां हैं जो इस अवसर पर यहाँ पधारी हैं वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। तमिलनाडु सरकार के वित्त मंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य वे भी यहाँ पर बारी बारी से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं, पंक्तिबद्ध हैं, और वित्त मंत्री महोदय ने पुष्प अर्पित करते हुए नतमस्तक हुए वे और अपने श्रद्धांजलि अर्पित की है। Shri O. Pannirselvan, who is the Finance Minister of the Government of Tamil Nadu, representing the Government of Tamil Nadu, paying his obeisance to the former President of India, Shri APJ Abdul Kalam. He is also been flanked by his cabinet colleagues. We can now see, Janendra, that the three chiefs of the armed forces, the army chief, the navy chief and the air chief, who are slowly coming down to the main rostrum where the body of the former President of India, Shri APJ Abdul Kalam, is placed on a raised platform. And we see that the dignitaries who were in the dais have also come down. Shri Ghulam Nabi Azad, Shri N. Chandrababu Naidu, Shri Siddaramaiah. We can also see the Chief Minister of Kerala, Shri Oommen Chandy, and the Governor of Kerala, Justice P. Sathasivam. The people here who have been assembled since morning, most of them are having tears in their eyes now, because the moment is arriving soon when the mortal remains of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, will be lowered into the womb of Mother Earth, ashes to ashes, dust to dust. That is but human life. But the legacy of Dr. APJ Abdul Kalam will always remain with us, and
Jainendra, we now can see that slowly the line of the dignitaries are reaching the podium where the body of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, lies in state. The cabinet ministers of Tamil Nadu government are paying their floral tributes one by one, and they are also doing their circumambulatory round of the podium, followed by a dignitary of the government of Tamil Nadu who's also paid his floral tributes. The Army Chief, General Dalbir Singh Suhag, paying his final salute to the former commander, the Supreme Commander of the Armed Forces, smartly saluting the podium and taking the circumambulatory motion round the podium. एक एक करके विभिन्न दलों के नेता भी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन अभी इस समय वायुसेना प्रमुख अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। जुलाई का महीना था सन 2002 में, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। आज उन्हीं पूर्व राष्ट्रपति को अंतिम विदाई देते हुए इस समय उनके पार्थिव शरीर के पास श्री शाहनवाज हुसैन, साथ ही श्री गुलाम नबी आज़ाद और उनके पीछे श्री चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। सन 2007 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद से पदभार छोड़ा था, और लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से वो समाज और देश के निर्माण में रत रहे, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। और उनकी यह हमेशा ख्वाहिश होती थी, औपचारिकताओं में नहीं बल्कि सच्चे मायने में कर्मयोगी बनकर ही हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और वे स्वयं एक कर्मयोगी थे, ये बात हम सब जानते और महसूस करते हैं। शाहनवाज जी और श्री गुलाम नबी आज़ाद ने दुआ मांगी अपने दोनों हाथ फैलाकर श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर के समक्ष, और उसके बाद श्री एन चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नेतागण। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वे सचमुच सही मायने में रत्न थे भारत के। डॉक्टर कलाम तीसरे राष्ट्रपति थे ऐसे जिन्हें भारत रत्न मिला था। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। Yes, Janendra, and one thing that is really very touching here at this moment, we see the nonagenarian former Chief Minister of Kerala, Shri V.S. Achyutanandan, who has also come here to pay his last respects to the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. This speaks about the friendliness of the man, his reach to each and every people across the spectrum. You could have had political differences with Dr. Kalam, but he was close to politicians and people of every hue. We now see the nonagenarian CPM leader, Shri V.S. Achyutanandan, paying his obeisance, and is followed by Congress Vice President, Shri Rahul Gandhi, and is also paying his last tributes to the departed President of India. In the line of dignitaries, Jainendra, we can also see the Ambassador of Nepal, Shri Deep Kumar Upadhyay, and the High Commissioner of Bhutan is also here in the traditional dress of the Bhutanese. Slowly the crowd of dignitaries is going towards the podium. People who have gathered here since morning, they have waited so long for this sight today, this final sight of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, who is no more with us, of course, but his memory, his legacy, his thoughts, his teachings, his values will always be cherished, will always be remembered, and will always be told for generations to come.
डॉक्टर कलाम की ये ख्वाहिश थी, उनकी अभिलाषा थी कि वे इस देश में, इस देश की मिट्टी में, इस देश के युवाओं के दिलों में प्रतीकों के रूप में जिंदा ना रहें, बल्कि वे हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे कर्म में उसका हिस्सा बनकर वो रहें हमेशा। ये वो चाहते थे, ये उनकी अभिलाषा थी। और इसीलिए स्वयं भी एक कर्मयोगी के रूप में अपने अंतिम सांस तक वे काम करते, प्रेरणा देते, गाइड करते। अपने उन्होंने अंतिम सांस ली थी 27 जुलाई 2015 को। श्रोताओं, आपको याद ही होगा, भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में वे अपना व्याख्यान देने गए थे और विषय था रहने योग्य एक गृह, धरती। इस धरती को रहने योग्य बनाने के लिए और इस धरती को रहने योग्य बनने के लिए क्या क्या उसके आयाम हो सकते हैं, क्या क्या उसकी गहराई हो सकती है। एक दार्शनिक के तौर पर उनकी सोच बहुत विस्तृत थी। लेकिन वही व्याख्यान देते हुए लगभग शाम 6:30 बजे का ही समय था जब वे अचानक मूर्छित हुए, गिर पड़े। बेतनिया अस्पताल में शिलांग में उन्हें ले जाया गया और डॉक्टरों ने वहां बताया, एक आघात जो देश के हर वासी को लगा वो ये सुनकर कि हृदयाघात यानी हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया था। इस साल अक्टूबर के महीने में वे 84 साल के होते। शिलांग से डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहले गुवाहाटी लेकर आया गया और वहां से 28 जुलाई को उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली में और उसके बाद उनके निवास स्थान पर, पूर्व निवास स्थान पर जहां वे रहते थे, वहां उनके शरीर को रखा गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने आकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बहुत बड़ी संख्या युवाओं और बच्चों की भी थी। कल यहां बातचीत के दौरान यह आभास मिला और ऐसे कुछ बच्चों से बातचीत करने का मौका मिला जो जिन्होंने जब ये सुना कि पूर्व राष्ट्रपति, उनके बहुत ही प्रिय प्रेरक व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे, उस दिन उन कुछ युवाओं ने मिलकर एक संकल्प लिया। और ये कुछ युवा वो हैं जिन्हें हम जानते हैं, ऐसे हजारों लाखों युवा होंगे श्रोताओं जिन्होंने शायद अपने अपने स्थान पर यह संकल्प लिया होगा। उन युवाओं का यह संकल्प था कि वे अपने जीवन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से उन बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित करेंगे जिन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूं कहा करते थे कि उन्हें अपने पिता से और अपने परिवार से जो दो सबसे मजबूत हथियार मिले, साधन मिले, प्रेरणा मिली, वो थी शिक्षा की और दूसरी मेहनत करने की, संकल्प की। और उनकी ये इच्छा और उनकी अभिव्यक्ति थी कि शिक्षित होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा से ही हम अपने जीवन की तमाम मुसीबतों का, तमाम कठिनाइयों का मुकाबला कर सकते हैं, अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए शिक्षित करने के उद्देश्य से एक शिक्षक के रूप में भी वे लगातार तमाम अलग अलग विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में जाते रहे। उन्हें सुनने के लिए युवा हों या बच्चे घंटों इंतजार कर सकते थे। और जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया था, उस शख्स का, उस सैनिक का जो शिलांग के इनकी अपनी यात्रा के दौरान आगे की जिप्सी में सुरक्षा के लिए लगातार वो रास्ते पर खड़ा रहा राइफल लेकर, उनसे जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, जब ये शब्द बोले कि आप थक गए होंगे इतनी देर खड़े खड़े, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, तब उस सैनिक ने बड़े गर्व के साथ सीना तान कर ये कहा था कि सर, आप जैसे व्यक्ति के लिए तो मैं घंटों खड़ा रह सकता हूं, उसमें चाहे वो 6 घंटे हो या 8 घंटे हो या 12 घंटे, ये मैटर नहीं करता, इस बात का कोई मायने नहीं है। ये प्रेरणा उनके व्यक्तित्व की अपने आप में बहुत कमाल की है, जो हमारे अंदर ऊर्जा भरती है, ताकत भरती है, संकल्प से हमें भर देती है। एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति भवन में जिस सरलता के साथ, जिस सहृदयता के साथ और जितने सहज भाव से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, वो दूसरों के लिए प्रेरणा रही है। पीपल्स प्रेसिडेंट उन्हें वैसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान आम से आम आदमी के लिए उनका राष्ट्रपति भवन आवास उनका खुला होता था और समय लेकर कोई भी उनसे मिल सकता था। और वे बहुत सहृदय भाव से, बहुत स्नेह के भाव से सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे।
उनके अंदर की ये उत्कंठा अपने आप में बहुत कमाल की है कि वे हमेशा इस उद्देश्य से बच्चों से, बड़ों से, युवाओं से या किसी से भी बात करते थे, यूं लगता था जैसे वे खुद कुछ जानना और सीखना चाहते हैं। सीखने की ललक उनकी आखिरी सांस तक रही और वो सीखकर इतना कुछ उन्होंने दिया है इस देश को और इस समाज को, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। Sri Vaikul V. Gopalasamy, the political leader from Tamil Nadu, paying his obeisance and respects to the departed former President of India, Shri APJ Abdul Kalam. As the floral tributes by the dignitaries come to an end, the armed forces personnel are waiting to proceed with the final funeral rites of the departed president, and we now see that the personnel are slowly making their way towards the podium where the body of the former Supreme Commander of the Armed Forces lies in state. The General Officer commanding is coming here, and we see the soldier coming here saluting the cortege, and now the wreath that was placed by the Prime Minister before the cortege of the former president is being ceremonially kept at a different place in the podium. The soldier again saluting the cortege and taking his place at the head of the podium. We now see that the armed forces personnel are standing to attention, and in a short while from now the ceremony of the tricolor being folded back to begin. We see the Army, Navy and Air Force personnel coming to the podium, saluting the cortege of the former president, and now they are having finished their salute, they are ceremonially taking off the national tricolor from the cortege of the departed soul, and now they have taken a right turn and the national flag is being ceremonially carried by the airman, the sailor and the army man. Winds here fluttering, and you can see the tricolor, though it's now been folded, it's still fluttering due to the winds here. The national tricolor is now being folded ceremonially by the personnel of the armed forces, and in one swift motion the tricolor has been folded and it has been handed to the airmen, and now they begin their march towards the end of the podium. सैन्य अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ मार्च करते हुए उस दीर्घा में लेकर जाते हुए जहां सैन्य अधिकारियों के लिए विशेष स्थान है, और वहां उसे सुपुर्द किया जा रहा है एक अन्य सैन्य टुकड़ी को। वे सैन्य टुकड़ी जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान शामिल हैं, और अब दूसरी टुकड़ी सैन्य अधिकारियों की संयुक्त टुकड़ी मार्च करते हुए वे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर के दोनों तरफ आकर खड़े हुए हैं। सावधान की मुद्रा में दाहिने टर्न लिया, दाहिने तरफ मुड़कर उन्होंने अपनी पोजीशन ली हुई है और सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को यहां से सुपुर्द खाक करने के लिए साथ बने स्थान पर कब्र में स्थानांतरित किया जाएगा। इस समय लोगों की भावनाओं का अतिरेक, भावनाओं का जो आवेग है वो निश्चित रूप से अपनी पराकाष्ठा पर है, क्योंकि जो ऊर्जा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सब में भरकर इस दुनिया से उन्होंने विदा ली है, वो ऊर्जा सदियों तक यहाँ की फिजाओं में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के माहौल में हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। सलामी दी है
सैल्यूट किया है इन सैन्य अधिकारियों ने, और एक बार फिर से दाहिने टर्न लिया, दाहिने तरफ मुड़े और मार्च पास्ट करते हुए एक एक करके वहां से वापस अपनी दीर्घा में जाते हुए कुछ निर्देश वहां प्राप्त करते हुए, और इस बीच परिवार के जो सदस्य हैं, जो रिश्तेदार हैं, दूसरी दीर्घा में जो उपस्थित हैं, वे भी अपने अपने स्थान पर सब खड़े हुए हैं। चारों तरफ इस पकरुम्ब जो प्रांगण है, ये मैदान है, इसके चारों तरफ विशाल संख्या में जो उपस्थित जन समुदाय है, जो अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और अंतिम विदाई देने के लिए यहां पहुंचे। इस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने पूर्व राष्ट्रपति को विदा देने के लिए, एक ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, दार्शनिक के रूप में, चिंतक के रूप में और आध्यात्मिक मर्मज्ञ के रूप में, जिन्होंने हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया है। युवाओं के लिए हमेशा उनका ये संदेश हुआ करता था कि कुछ अलग हट के सोचने का साहस रखो, कुछ अचिन्ह या अनजान रास्तों पर चलने का साहस रखो, असंभव को संभव बनाने का साहस रखो, समस्याओं पर विजय पाने का साहस रखो। सफलता उसके बाद तुम्हारी ही है, सिर्फ तुम्हारी। परिवार से जुड़े कुछ अन्य व्यक्ति अब इस समय अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि, अपने खिराज अकीदत पेश करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर पर साथ में रखे पात्र से पुष्प लेकर उनके चरणों में समर्पित करते हुए हल्के हल्के संगीत के शोक धुन जो है इस पूरे माहौल में, पूरी फिजाओं में गूंजते हुए इस बात का एहसास दिला रही है कि जहां ये स्वर लहरियां जिस धरती की हवा में गूंज रही हैं, उसी धरती से, उसी मिट्टी से उपजा एक सपूत जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, जिसने भारत को वो ऊंचाइयां बख्शी हैं जिसको सदियों तक जमाना याद करेगा और सदियों तक हम उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करते रहेंगे। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। इसके अलावा अनेक दूसरे देशों ने भी अपने अपने यहाँ राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी, जिनमें भूटान शामिल है, नेपाल शामिल है और ऐसे कई देशों के राजनयिक यहाँ इस अवसर पर रामेश्वरम की इस धरा पर उपस्थित हैं अपने अंतिम विदाई देने के लिए। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने डॉक्टर कलाम के निधन पर बहुत गहरा दुख भी व्यक्त किया था। आपको याद होगा श्रोताओं, डॉक्टर कलाम के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व छात्र दिवस के रूप में, यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया था। भारत के उस सपूत के प्रति, रामेश्वरम के उस सपूत के प्रति पूरी दुनिया में जिस तरह का सम्मान है, ये उसी का प्रतीक है। लगभग 40 ऐसे विश्वविद्यालय हैं देश विदेश के, जिन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। भारत सरकार ने 1981 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ये सम्मान उनको उनके वैज्ञानिक क्षेत्र में और खासतौर पर इसरो और डीआरडीओ के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया गया था और 1997 वो वर्ष है जब उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। इस समय उनके पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदार जो यहाँ स्थानीय भी हैं और इस अवसर पर बाहर से भी यहाँ आए हैं, वे एक एक करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 2005 की बात है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड गए थे। वहां के युवाओं और वहां के व्यक्ति, वहां की सरकार भी इस बात से इतनी प्रेरणा महसूस कर रही थी कि 26 मई की तारीख को उन्होंने साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया था, उसे मनाया था। इन सभी बातों से यह अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वे एक ऐसे विभूति थे जो सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के, पूरी दुनिया के अन्य देशों के व्यक्तियों के लिए भी बहुत ही प्रेरक थे, क्योंकि उनका जो इनोवेशन, उनका जो नए एक्सपेरिमेंट, नए प्रयोग, नए सपने, नए ख्वाब और उन सपनों को साकार करने का संकल्प, ये सब चीजें मानवता के प्रति उनकी देन थी। और इसीलिए कहीं का भी मानव हो, किसी भी देश का वासी हो, उनके इन विचारों से बहुत गहरे तक प्रभावित होता था। वे कहते थे, मैं बच्चों के बीच में अपने आप को बहुत सहज महसूस करता हूं, अपने को ऊर्जा से भरा पाता हूं। मैं उनसे अपने अनुभव बांटता हूं, इसलिए बांटता हूं ताकि उनके अंदर कल्पनाशीलता जागे, इमेजिनेशन, ख्वाब, सपने में बुने
और उन सपनों को बुनेंगे तभी उन्हें पूरा करने का संकल्प भी लेंगे। इस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के परिवार के सदस्य धार्मिक रीति रिवाज से दुआ मांगते हुए इस समय उनके पार्थिव शरीर के बिल्कुल पास दीर्घा में खड़े उनके रिश्तेदार और परिवार के अन्य सदस्य भी अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हैं। अंतिम क्षण में जब अंतिम विदाई देते हुए अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर का, एक ऐसी पुण्य आत्मा जिसने इसी रामेश्वरम की पावन धरा पर जन्म लिया 84 वर्ष पहले। यही बचपन के संघर्ष भरे दिनों को उन्होंने जिया। पढ़ाई का खर्च, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन या प्रवेश होना था, उस दौरान परिवार के पास पैसे नहीं थे उनके एडमिशन के लिए, उनके प्रवेश के लिए, तो उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने गहने बेचे इस बात के लिए कि उन्हें पढ़ाया जा सके, उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो सके। तो ये जो परिवार की तरफ से समर्थन इस बात के लिए था कि किसी भी हालत में शिक्षा उन्हें ग्रहण करनी है और उन्हें शिक्षित करना है, ये शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। और इसीलिए वे इस बात को मानते थे कि शिक्षा एक ऐसा हथियार इस देश के निवासियों के हाथ में होना चाहिए जो उन्हें हर मुश्किल से, हर अज्ञानता की बाधाओं से पार करते हुए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में अपना सफलता दिला सकता है। एक बार पुनः सैन्य अधिकारी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर के पास 6 अधिकारी दोनों तरफ से सम्मान के साथ उन्होंने उस पार्थिव शरीर को यहाँ उठाया है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। साथ में कब्र बनी है जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। लोगों की भावनाएं, लोगों के मन का आवेग इस समय आगे बढ़ता हुआ, तेज होता हुआ, नारे लगाते हुए, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए ये अंतिम विदाई के इस क्षण में भी वे इस पल को अपने जीवन में, अपनी सांसों में बसा लेना चाहते हैं ताकि उनके जीवन में ये पल उन्हें प्रेरणा देते रहें, जीवन में कुछ करने का, हासिल करने का, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए और उससे भी आगे कहीं मानवता के लिए कुछ करने का संकल्प। सैन्य अधिकारी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को सावधानी के साथ उसे उठाते हुए कब्र के पास लेकर पहुंचे हैं जहां उनके परिवार के अन्य सदस्य और धार्मिक गुरु जो वहां पर मौजूद हैं। कब्र से वहां लकड़ी हटाकर उसमें जगह बनाई गई है, बीच में जो धार्मिक गुरु है वो उतरे हैं उसमें और अब पार्थिव शरीर को लेकर कब्र के पास पहुंचते हुए जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। The mortal remains of the former President of India, Shri APJ Abdul Kalam, is now being lowered into the grave, and the armed forces personnel paying their last salute. The people who have assembled here, all the dignitaries are standing up, and everyone craning their necks as the religious ceremony is on at this moment at the site of the graveyard, chanting of religious verses, and we can now see that the family members and the religious leaders standing around the grave of the former president, and they are chanting their verses, and they are waiting for the prayers to come to an end so that the grave can be filled with the sand as per the religious tradition. People are very, very charged in this atmosphere today. They are extremely disturbed at losing the favorite son of the soil. Though he passed away at the age of 83, Dr. APJ Abdul Kalam had a unique connect with people across all age groups, and people who have been waiting here since morning are now quite moved, and we can see most of them teary-eyed, and some of the people are openly weeping. As the religious rites continue, we also see that people are standing, the armed forces personnel standing to attention, the dignitaries including the Prime Minister and his cabinet colleagues, the ministers of the government of Tamil Nadu, they are all standing, and they are all waiting for the
burial ceremony to be completed. दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगते हुए बहुत सारे ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं और खासतौर पर कब्र के इर्द गिर्द खड़े परिवार के सदस्य और धार्मिक गुरु जो वहां उपस्थित हैं। इस समय सबसे पहले उन्होंने दुआ मांगी है सबने मिलकर, और अब उनके पार्थिव शरीर को कब्र के अंदर सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया में एक एक करके, चूंकि उसके चारों तरफ वहां परिवार के सदस्य और अन्य व्यक्ति खड़े हैं, उस प्रक्रिया के साक्षी बनने के लिए यहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। सभी दीर्घाओं में प्रधानमंत्री सहित सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। इस समय सब कुछ रामेश्वरम के इस धरा पर स्थिर हो गया है। गतिमान है तो सिर्फ मन की वे उद्वेग और वो भावनाएं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति करोड़ों व्यक्तियों के मन में रही है, और खासतौर पर रामेश्वरम के यहाँ के रहने वाले लोगों के मन में, क्योंकि यहाँ वे पैदा हुए, स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ से कुछ ही दूर पर है रामनाथपुरम, वहाँ का रामनाथपुरम स्ट्राट्स मैट्रिकुलेशन स्कूल है जहाँ उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी, अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी, और उसके बाद वे तिरुचिरापल्ली चले गए थे। वहाँ सेंट जोसेफ्स कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एडमिशन लिया था, प्रवेश लिया था। परिवार के सदस्यों के साथ वहाँ शाहनवाज हुसैन साहब भी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री, और अन्य व्यक्तियों के साथ चर्चा करते हुए श्री गुलाम नबी आज़ाद भी उनके बीच में हैं, उनके साथ हैं। और उस पूरी प्रक्रिया को, उस रीति को जिसे हम सुपुर्द खाक कहते हैं, किसी के भी जीवन का अंतिम ये वो क्रिया है जिससे एक सांसारिक यात्रा जो है वो संपन्न हो जाती है, खत्म हो जाती है। जीवन की ये रीत है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बुर्ले होते हैं, सदियों में कोई एक होता है जो इतनी गहरी छाप छोड़कर इस धरती पर इतनी सारी खूबसूरत लकीरों से, खूबसूरत भावनाओं से और अपने प्रेरक व्यक्तित्व से समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ देकर गया है। उनके शरीर को कब्र की गहराइयों में स्थापित कर दिया गया है। जल लेकर आया गया है गागर में, प्लास्टिक की गागर में जल लेकर आया गया है। खाक को, यानी आसपास की मिट्टी को कुदाल के साथ, उसमें फावड़े के साथ उसमें डाला जाएगा और ऊपर से जल का छिड़काव। ये अंतिम, इस क्रिया के सुपुर्द खाक की क्रिया के अंतिम पड़ाव होंगे। सन्नाटा है चारों तरफ, लेकिन बीच बीच में लोगों की आवाजें उठती हैं, जय घोष के नारे सुनाई देते हैं, कानों में पड़ते हैं, और उसके पीछे उस प्रेरक व्यक्तित्व की छाया नजर आती है जिसे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, अपने व्याख्यान से, अपने लेखन से, अपनी पुस्तकों से और अपने ज्ञान से उन्होंने दुनिया को कितना रोशन किया है ये हर कोई जानता है, क्योंकि वे लोगों के राष्ट्रपति थे, पीपल्स प्रेसिडेंट थे। हर किसी की उन तक पहुंच थी, वे हर एक तक पहुंचने की कोशिश करते थे और उनकी ख्वाहिश होती थी कि आम से आम आदमी के साथ भी सहज भाव से, बड़े सरल भाव से मिलकर बात करके उनको कुछ दें और उनसे भी कुछ पाएं। वे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक थे। अपने धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ गीता का उन्होंने गहन अध्ययन किया। वीणा वादन से वे अपने आत्मा की उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते थे। संगीत उनके जीवन में रंग भरता था, उन्हें खुशी देता था। और कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटक संगीत और साथ ही साथ हिंदुस्तानी संगीत भी उन्हें बहुत प्रिय था, शास्त्रीय संगीत। ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचकर कलाकारों को सम्मानित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना उनके मन को भाता था, क्योंकि वे इस बात को बहुत गहरे से महसूस करते थे कि इतनी विविधता से भरी भारत की संस्कृति है, इतनी सारी जहां भाषाएं हैं, बोलियां हैं, गीत संगीत नृत्य के प्रकार हैं, हमारे रीति रिवाज और परंपराएं हैं, वे हमारी बहुत बड़ी धाती हैं, हमारी बहुत बड़ी हिरासत है। और उनको सहेज कर रखने का जो काम करते हैं वो कलाकार ही करते हैं। और इसीलिए कलाकारों के प्रति उनके मन में अगाध, बहुत गहरा सम्मान था और हमेशा कला को भी सम्मान देते थे और कलाकारों को भी सम्मान देते थे। 1955 में कलाम साहब ने मद्रास में जब एडमिशन लिया था इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वहां से उन्होंने एक ऐसे फील्ड के साथ वो जुड़े थे जिसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग कहते हैं। ये उनके सपनों के उड़ान की पहली कोशिश थी, क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग से जुड़कर उन्होंने, चाहे वो DRDO के माध्यम से
पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइल्स के निर्माण के माध्यम से मिसाइल मैन की उन्होंने अपनी पहचान बनाई हो, या अंतरिक्ष की जो उड़ान थी SLV-3, PSLV, ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से उन्होंने जो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को और अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए कार्यों को एक वो ऊंचाई और वो उड़ान दी थी जिस पर भारत को गर्व भी है, और उसने एक ऐसी मजबूत नींव तैयार की थी भारत के लिए जिस पर आज मंगल तक हम पहुंचने की ताकत और क्षमता रखते हैं। ये उनकी प्रेरणा थी। वैज्ञानिकों की एक ऐसी फौज उन्होंने तैयार की थी, इतनी अधिक प्रेरणा उन्हें दी थी कि इनोवेशन से, नवाचार से, शोध से, अनुसंधान से पीछे ना हटे, बल्कि उसकी आवश्यकता पर वे हमेशा बहुत जोर देते थे। बहुत आवश्यकता इस बात की महसूस करते थे, और देश को अगर नॉलेज सुपर पावर बनाना है, ज्ञान के क्षेत्र में एक महाशक्ति अगर भारत को बनाना है जिसकी क्षमता उन्हें लगता था कि इस देश में बहुत ज्यादा है, उसको जगाने का, उसको प्रेरित करने का प्रयास वे हमेशा करते रहे। You are absolutely right, Jainendra. And as he said, if a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, he strongly felt that there are three social members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher. His message to the youth of the country was they should have courage to think differently, courage to invent, courage to travel the unexplored path, courage to discover the impossible and to conquer the problems and succeed. These are the great qualities that the youth must work towards. This was Dr. Kalam's message to the people. He also said that God, our Creator, has stored within our minds and personalities great potential strength and ability. Prayer helps us tap and develop these powers. Dr. Kalam, known for his quotable quotes, once said, "Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success. Unless India stands up to the world, no one will respect us. In this world, fear has no place, only strength, respect strength." Said as we look at the religious ceremonies still on, and we are witnessing some religious ceremonies that are going on at the graveyard, and the former president said, "Look at the sky, we are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work." This great son of India has now gone back to the womb of Mother India in this very place of his birth, Rameshwaram. As you rightly pointed out, Jainendra, as we were coming from Madurai, we saw his school, the Schwar school, where he went as a youngsters for his matriculation studies. And the wonderful thing about that school was, even after the passing away of Dr. Kalam, the school did not close, as was the wish of this great son of India. The student had their regular classes, but there was always the huge portrait there which everybody who passed through the school could see, and people could come at their convenience and pay their tribute. यहाँ सब कुछ कौशिक सायास नहीं बल्कि अनायास होता रहा, क्योंकि उसके लिए कोशिश नहीं किसी ने की। स्वाभाविक रूप से जैसे ही लोगों को पता लगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब नहीं रहे, या उसके बाद जब ये जानकारी, ये सूचना लोगों तक पहुंचे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर लेकर यहाँ रामेश्वरम आया जा रहा है और परिवार की इच्छा के अनुसार जो अंतिम संस्कार है वो इसी रामेश्वरम की धरती पर होना है, तो यहाँ के तमाम, चाहे वो स्कूली बच्चे हों, शिक्षक हों, समाज के लोग हों, अलग अलग समुदाय को लोग हों, सभी अपने अपने ढंग से उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे। कल का दिन हम जहाँ से भी रामेश्वरम शहर में या कस्बों के बीच से या सड़क से गुजरे हैं, बहुत बार ऐसे सामना हुआ, ऐसे समुदायों से, ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप्स के साथ, जहाँ किसी में स्कूली बच्चों का समूह प्रभात फेरियों के रूप में प्रभात फेरी लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विशाल चित्र के साथ उनके संदेशों को प्रसारित करते हुए, प्रचारित करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस समय आगे बढ़ते हुए सभी जो मिट्टी है उसे सबने मुट्ठी में उठाकर उस पार्थिव शरीर पर डाला है जिसे कब्र में रखा गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर सुपुर्द खाक
कि ये प्रक्रिया जो है अपने अंतिम चरण में है। ये आभास और ये अनुभव और इस अवसर का साक्षी होना भी अपने आप में भावुकता से भर देता है हर किसी को, चाहे वो यहाँ हो, आकाशवाणी के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से आप तक ये सजीव चित्रण पहुंच रहा हो, विवरण पहुंच रहा हो, वो सब हमें बहुत अंदर तक छूता है। इस समय फावड़े के साथ सबसे पहले तो मुट्ठी से भर भर कर मिट्टी जो है उस कब्र में डाली गई और उसके बाद अब फावड़े के साथ चारों तरफ से उस पर मिट्टी डाला जा रहा है और उसे इस धरती में, उस पार्थिव शरीर को इस धरती की गोद में समाहित कर दिया गया है, जहां से हम मानते हैं कि जिस धरती पर पैदा होकर, जहां का अन्न खाकर, जहां का जल पीकर कोई भी इंसान अपना जीवन यापन करता है, जीवन जीता है, और उसी धरती की गोद में एक बार पुनः समाहित हो जाने का ये क्षण होता है, जब अपनी पूरी यात्रा करने के बाद एक बार पुनः यूं लगता हो जैसे मां की गोद में आकर एक जो सुख की और आनंद की अनुभूति होती है, उसी अनुभूति को शायद महसूस किया जा सकता होगा जब इस तरह से सुपुर्द खाक किया जाता है, जब इस धरती को एक बार पुनः समर्पित कर दिया जाता है जिसने हमें एक ऐसा महान सपूत दिया था। परिवार के और धार्मिक समुदाय के लोग इस समय फावड़े के साथ चारों तरफ से कब्र में उसको मिट्टी डालते हुए उस पर उसको बराबर किया जा रहा है, उसको भरा जा रहा है उस कब्र को। चारों तरफ से उसकी जो दीवारें बनाई गई हैं वो पत्थर की हैं, स्टोन से वो दीवारें बनाई गई हैं और उसके बीच में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महान व्यक्तित्व, महान विभूति, इस भारत के महान सपूत। ऐसा कोई व्यक्तित्व विरला ही होगा जो एक साथ इतनी प्रतिभाओं से युक्त हो, इतने सारे गुणों का धनी हो, वैज्ञानिक के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, दार्शनिक के रूप में, या धर्म और आध्यात्म के मर्मज्ञ के रूप में, क्योंकि उन्होंने तमाम अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन किया। जीवन के मर्म को समझने के लिए ये उनको एक मौलिक आवश्यकता इसकी महसूस हुई थी और इसीलिए भारतीय संस्कृति को ही अपना धर्म मानकर, भारतीय होने के गौरव को धारण करके इस भारत के लिए बहुत कुछ करने की आकांक्षा और अभिलाषा लिए हुए पूरा जीवन जिस व्यक्तित्व और जिस विभूति ने समर्पित किया, ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपना शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनका दर्शन, उनका अध्यात्म हम सबके मन में रहेगा, हम सबके आसपास फिजाओं में गूंजेगा, देश की इस मिट्टी में जिंदा रहेगा और यहाँ के जल में, यहाँ के वायु में, यहाँ के पानी में। इस समय श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री, अपने दीर्घा से, अपने स्थान से उठकर एक बार पुनः उस स्थल की तरफ आते हुए जहां परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई, परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य, 96 वर्षीय उनके बड़े भाई, एक बार पुनः प्रधानमंत्री महोदय ने झुककर उन्हें नमन किया है, सबको हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया है। इस भावुक क्षण में यहां सबका अभिवादन करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री परिवार के अन्य सदस्यों से मिलते हुए, चर्चा करते हुए, जबकि इधर कब्र पर जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, वो फावड़ों से मिट्टी जो है वो कब्र में भरते हुए उसे बराबर करते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने के बाद वापस प्रस्थान के लिए, लेकिन उससे पहले वे एक बार पुनः अपनी दीर्घा में आए और वहां आकर वे कुछ पल के लिए रुके हैं, अभी कुछ चर्चा करते हुए वहां अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, और साथ ही खड़े हैं अपने स्थान पर अब सभी मंत्रिमंडल के उनके सदस्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ साथ। दूसरी दीर्घा में तमिलनाडु सरकार के मंत्रीगण, लेकिन उससे पहले वहां तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल महोदय, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी सदस्य, वे सभी वहां पर अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, कुछ बैठे हुए हैं और उनमें से कुछ सदस्य यहाँ
परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई 96 वर्षीय, उनके भ्राता जो परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे आकर एक एक करके वे विदा ले रहे हैं। और धीमे स्वर में यहाँ की फिजा में, यहाँ के वायुमंडल में संगीत के जो शोक संगीत से जुड़े हुए जो स्वर लहरियां हैं, वे सचमुच भावों के उस अतिरेक को जगाते हैं, भावों के उस उद्वेग को जगाते हैं और भावों के उस गहराई में, अपनी भावनाओं के और हृदय के अंतरतम गहराइयों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उस महान व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक करते हुए उनकी कृपा, उनके स्नेह और उनके संसर्ग में जिसको भी यह सौभाग्य मिला है कुछ उन पलों को जीने का, उनसे चर्चा करने का, उनसे बातचीत करने का या उनसे स्नेह प्राप्त करने का, उन क्षणों को उसने हमेशा एक प्रेरणा के तौर पर अपने मन में संजो कर तो रखा ही है। लेकिन आज भारत रत्न से सम्मानित ऐसी विभूति के सशरीर इस दुनिया से जाने के बाद निश्चित रूप से वो क्षण और भी ज्यादा याद आएंगे और हमें प्रेरणा भी देंगे। Yes, absolutely, Jainendra. The former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, has been lowered into his eternal resting place, the grave here at Pekarumbu, and we now slowly see that the family members and others are bowing down near the grave. They're just covering up the grave as per the religious practice, and we see lots and lots of youngsters coming forward to pay their last homage to the former president. And we would like to bring before our listeners the pledge that the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, invoked. I am born with potential. Born with potential. I am born with goodness Born with goodness and trust. and trust. I am born with ideas and dreams. Ideas and dreams. I am born with greatness. Greatness. I am born with Born with confidence. confidence. I am born with wings. Born with wings. So I am not I am not meant for crawling crawling because I have wings. I have wings. I will fly. I'll fly. I will fly. I'll fly. I'll fly. I'll fly. श्रोताओं, आकाशवाणी के माध्यम से एक वो शपथ, उसकी झलक भी हमने आप तक पहुंचाई इसी प्रसारण के दौरान, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब उनकी रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी की टीम उनके पास पहुंची थी। हम सबके लिए आकाशवाणी परिवार के सदस्य के रूप में एक बहुत सुनहरा अवसर हुआ करता था जब हम में से कोई भी जब राष्ट्रपति भवन में या किसी भी अवसर पर उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनकी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए, उनका संदेश रिकॉर्ड करने के लिए जाते रहे। जिस स्नेह के साथ और जो सम्मान और जो सद्भाव और जो सहृदयता उनसे मिलती थी, वो पल हमेशा हमारे मन में प्रेरणा बनकर रहेंगे। और ऐसे ही पिछले दिनों, बहुत हाल की बात है, एक वो आकाशवाणी के लिए आखिरी रिकॉर्डिंग उनकी जब की जानी थी, आकाशवाणी की टीम जब उनके पास पहुंची थी, रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने हमेशा की तरह, जैसा वो सदैव इस बात की कोशिश करते हैं और करते हैं, उन्होंने शपथ दिलवाई। हम सब जो वहां मौजूद थे उन सब ने ये शपथ ली। वो शपथ सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, क्योंकि उन शब्दों के पीछे जो उनका प्रेरक व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, उसकी ताकत है उन शब्दों के पीछे। और इसीलिए वो ताकत, उसकी क्षमता उन शब्दों की इतनी अधिक और इतनी गहन है कि हमेशा हमारे जीवन में वो प्रेरणा बनकर रहेगी। ये विश्वास है हमें, और इसी विश्वास से हमने उन शब्दों को आप तक भी पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि उस शपथ के माध्यम से उनकी सोच और उनके विचारों को भी हम समझ सकें। ये संकल्प निश्चित रूप से उस पल में और गहरा हो जाता है जब भी ऐसे अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस तरह की शपथ दिलाया करते थे। और पिछली बार वो अवसर भी ऐसे ही था जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शपथ दिलवाई थी, वहां उस रिकॉर्डिंग में गई पूरी टीम को। और यकीनन ये संकल्प हमारे सोच में जो विस्तार देता है और मजबूती देता है, और इस बात के लिए विश्वास दिलाता है कि हम जीवन भर उनके उन शब्दों को, उनके उन विचारों को, उनके उस सोच को अपनी वाणी से और आकाशवाणी से हमेशा जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ।
यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में जो उपस्थित जन समुदाय है, बहुत सारे ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर दुआ मांग रहे हैं। सैन्य अधिकारी और सैन्य कर्मी और हमारे संयुक्त जो सेना की तीनों टुकड़ियों की संयुक्त गारद है, सावधान अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, लेकिन हर एक दिल से दुआ है, हर एक हाथ जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति के हाथ उठे हुए हैं हवा में दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए। और जो भी सर्वशक्तिमान सत्ता है जो इस दुनिया को चलाती है, यह दुआ तो एक भारतवासी के रूप में हमेशा मन में रहेगी कि ऐसे महान सपूत इस धरा पर बार बार जन्म लें जो हमारे जीवन को प्रेरित कर सकें, इस देश के आगे बढ़ाने का जो सपना है उसे हकीकत में बदलने का रास्ता दिखा सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे ही महान विभूति थे, एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। रामेश्वरम एक छोटी सी जगह सुदूर दक्षिण में, भारत के सुदूर कोने में, और रामेश्वरम के पश्चिमी दिशा में लगभग शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये पकरुम का मैदान, इसी मैदान में आज इस देश के महान सपूत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अंतिम विदाई दी गई, सुपुर्द खाक किया गया उन्हें। अभी भी जो इस्लाम के धार्मिक गुरु हैं, परिवार के सदस्य भी वहां पर उपस्थित हैं, दोनों हाथ उठाए हुए दुआ मांग रहे हैं अपने भावनाओं को और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए सर्वशक्तिमान सत्ता से उनके आत्मा की शांति के लिए और उनकी इस पूरी यात्रा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी दुआ कबूल होने की दुआ भी साथ में की गई। इस समय जबकि ये अंतिम प्रक्रिया यहां चल रही है, कब्र पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने स्थान से आगे बढ़ते हुए, मंत्रिमंडल के सहयोगी भी उनके साथ हैं, श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को यहाँ उपस्थित जनसमुदाय ने अभिवादन किया है और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार पुनः यहाँ से गुजरते हुए परिवार के सदस्यों और जो भी वरिष्ठ जन है वहां पर उनका अभिवादन किया है और हवा में हाथ हिलाते हुए उन्होंने इस स्थान से यहाँ से प्रस्थान किया है अपने वाहन की तरफ। एक एक करके यहाँ से लोगों का जाने का सिलसिला शुरू हो, लेकिन उससे पहले जो कब्र के ऊपर जो मिट्टी डाली गई थी, सुपुर्द खाक किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को, दुआएं पढ़ने के बाद उसके ऊपर अब फूल डाले जा रहे हैं, फूलों की पंखुड़ियां जो हैं वहां उस पर फैलाई जा रही हैं और यहां से एक एक करके प्रधानमंत्री महोदय के बाद सभी गणमान्य अतिथियों का भी यहां से प्रस्थान आरंभ हो चुका है। सेना के तीनों टुकड़ों की जो संयुक्त गारद है वो भी यहां से प्रस्थान कर रही है, लेकिन हमें एहसास है इस बात का कि यहाँ जो लाखों की संख्या में जन समुदाय उपस्थित है वे निश्चित रूप से सहज भाव से यहाँ से जा न सकेंगे, क्योंकि जिन भावनाओं के आवेग में वे यहाँ जुड़कर आए हैं वे निश्चित रूप से उन्हें इस धरती से, इस मिट्टी से, यहाँ की हवाओं से और फिजाओं से बांध के रखेंगी। लेकिन श्रोताओं, एक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व जिन्होंने देश को नेतृत्व भी दिया, देश के प्रथम नागरिक के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, महान दार्शनिक के रूप में, चिंतक के रूप में, एक ऐसे व्यक्तित्व की अंतिम विदाई में आकाशवाणी के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से यहाँ का सजीव चित्रण और प्रसारण विवरण हमने आप तक पहुंचाया है, इस उम्मीद और इस आकांक्षा के साथ कि हम सब मिलकर उनके उन सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे जो सपने हम दिन में देख सकें और जो सपने हमें सोने ना दें। ऐसे ही सपनों का भारत बनाने की उनकी आकांक्षा थी और उन सपनों के लिए साकार करने के लिए हम अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने क्षेत्र में जो भी कर सकेंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी भारत के इस महान सपूत के प्रति। अब मैं यहां से जैनेन्द्र, साथ में कौशिक राय, आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए वापस आपको आकाशवाणी के स्टूडियो लिए चलता हूं। अभी आप तमिलनाडु के रामेश्वरम से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंतिम संस्कार का आंखों देखा सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे जैनेन्द्र सिंह हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। You were listening to the live commentary of the last rites of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam from Rameshwaram, Tamil Nadu. Our commentators were Jaininder Singh in Hindi and Kaushik Roy in English.
This broadcast originated by AIR Madurai in coordination with AIR Chennai came to you from the Delhi station of All India Radio.